Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So guys, today we're going to be starting a new module in UiPath Studio, that is the PDF automation with Studio. तो आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे एक एकेडमी के कोर्सेज करवा रहे हैं आपको EDA एंड ADP सर्टिफाइड। मेरी गारंटी है जो भी वीडियोस देखेगा उसको बहुत हेल्प मिलेगी सर्टिफिकेशंस करने के लिए। टुडे वी गोना स्टार्टिंग अ न्यू मॉड्यूल PDF ऑटोमेशन विद स्टूडियो। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस विदाउट एनी फर्दर एडू। So the first chapter over here is extracting data using PDF activities. कि अब भाई ये PDF activity क्या होता है, everything I'll let you know. Quickly jumping into the UiPath Studio. Quickly read the process. Chapter 74. Oops. So PDF. Yeah. Like this, create it. Okay, so it is creating. So guys, for that to do, we have to install a packages called PDF activities. It's from UiPath only. We have to install PDF activities over there. So what we will be learning in the lesson, let's see in the crux. So how you can use the PDF activities package. We can also use the appropriate activities from the package to extract the large segments of PDF files, and we can also say how we can extract a single piece of information from a PDF document. Now there are two types of PDF. Let's quickly see that Visual Studio is loaded. Okay, so let's first quickly use PDF activities. PDF, this is it. Install. I think we have more updates over there as well. We can update them. Delete it, don't need it. This thing here as of now. Save it. So guys, as you are in the academy, so guys, there are two types of PDF. One is the native PDF and one is the second scanned PDF. तो ये जो दो टाइप की PDF है ये आपको बहुत हेल्प करेंगी whenever you are handling any document understanding project as well. उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप प्लीज थोड़ा सा फोकस से देखिएगा उसको, ठीक है। नेटिव PDF का मतलब ये होता है कि जो PDF बॉर्न डिजिटल है, मतलब उसको बनाया ही इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से है, राइट, एंड दैट इज नेटिव PDF। एक तरीका है इसको ढूंढने का नेटिव पीरियड, अगर हम उसकी टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, वो ब्लॉक्स ऑफ फाइल को हम अगर सेलेक्ट कर सकते हैं तो इट इज कॉल्ड अ नेटिव, राइट। एज आई सेड, बॉर्न डिजिटल। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन योर इंटरव्यूज, इन द एग्जामिनेशन एज वेल, राइट। तो द सेकंड विल बी द स्कैन PDF। आप एज द नेम सजेस्ट, स्कैन PDF, ठीक है। PDF file that is made up of scanned images of a given document. With the scanned PDFs, you will not be able to select text or use the search function because PDF is a collection of images. ठीक है, आई होप आपको समझ में। जिसमें इमेजेस होंगे वो आपकी स्कैन PDF है, ठीक है। स्कैन पेजेस होंगे आपके, इसमें इमेजेस होंगे, उसमें आपकी स्कैन PDF है। ओके, प्रीटी सिंपल, इसमें इतना कोई हौच पौच है नहीं। We have quickly installed the PDF activity. We don't need Excel as well. Remove it now. ठीक है, तो these are the three dependencies that we are using over here. अब quickly I'll go into the activities part panel and यहाँ पे मैं लिखूंगा PDF। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं that हमारे पास क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग की एक्टिविटीज भी है, लेकिन यहाँ पे हमारे PDF एक्टिविटी ये आ गई है यहाँ पे, ठीक है। So the first part will be read PDF text and the second will be read PDF with OCR. Questions इसमें से भी पूछे जा सकते हैं, इन दोनों में भाई डिफरेंस क्या है, what is the core difference between these two activities over there. So guys, the read PDF with text will be working with the native PDF, okay, it is much more accurate, read PDF with text, but read PDF with OCR is less accurate, but it will be रनिंग विद द स्कैन PDF। जो स्कैन PDF है उससे ये काफ़ी एक्यूरेटली डेटा
मतलब निकाल देता है, बट इट इज लेस रिलायबल देन द रीड पीडीएफ टेक्स्ट एक्टिविटी. ओके, so let's quickly see that whether we have some PDFs or not. I have downloaded UiPath's workflow only. Okay, so I'll just see downloads, PDF, data, and we have a PDF over here. ठीक है, इसका टेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टीज है फाइल नेम, पासवर्ड, अगर पासवर्ड है पीडीएफ में लगा हुआ, प्रिजर्व फॉर्मेटिंग. अगर मीन्स अगर हमारी जो फॉर्मेटिंग है, पीडीएफ की फॉर्मेटिंग है, अगर वी नीड टू प्रिजर्व इट, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है फ्लैग इट विल सिग्नल टू प्रिजर्व द फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट इन द फाइल ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन. सो इट विल बी preserving the formatting as well. It is a type of boolean flag, means true or false will be there. ठीक है, रेंज कहाँ से कहाँ तक हमें इसको पढ़ना है, इस पीडीएफ में कहाँ से कहाँ तक. वी वांट टू रीड दिस पीडीएफ टेक्स्ट आउटपुट एंड दिस टेक्स्ट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग. ठीक है, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ पीडीएफ टेक्स्ट, एंटर, सेव. ठीक है, तो ये मेरा पीडीएफ टेक्स्ट यहाँ बन गया है. वी आर डिसेबल इट फॉर नाउ. एंड यहाँ पे मैं एक राइट लाइन दूंगा यहाँ पे, जस्ट टू यू नो लेटिंग यू गाइस नो दैट इट इज वर्किंग. लेट्स सी. आपने देखा अगर गाइस हमारे प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसीज कम होगी ना, तो वो चलने में भी कम टाइम लेता है. ठीक है, सो आप देख सकते हैं टेक्स्ट एंड हमें आपको दिखाया तो पीडीएफ मैंने दिखाई नहीं, रियली सॉरी दैट. ये यूआईपाथ की पीडीएफ है. ये हमारे पास पीडीएफ आ गई यहाँ पे, टेक्स्ट सैंपल टेक्स्ट एंड इमेज पीडीएफ. इट वाज इन नवंबर एंड ऑल. ठीक है, सम गिब्रिश डेटा इज ओवर हियर, कांट अंडरस्टैंड. सो ये आप देख सकते हो, ये प्रॉपर है यहाँ पे. देखो फॉर्मेटिंग वाज प्रिजर्व. अगर मैं फॉर्मेटिंग को यहाँ पे हटाता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ FALSE false, and now if I'll run my workflow, अब वो क्या है, फॉर्मेटिंग को प्रिजर्व नहीं करेगा, टू बी जस्ट बी गिविंग लाइक दिस. ठीक है, तो इट्स बेटर टू हैव फॉर्मेटिंग टू ट्रू, तो वो आपको प्रॉपर वे में देगा. आई प्रेफर टू यूजिंग द प्रिजर्व फॉर्मेटिंग टू ट्रू बिकॉज आई प्रेफर इट टू बी इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर. ठीक है, ये हो गया. नाउ लेट्स क्विकली, तो वी हैव स्टार्टेड रनिंग द वर्कफ्लो गाइस. ठीक है, लेट्स सी. is using the UiPath document OCR also over here, right? तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट है आ गया है. This is the result over there. ठीक है, see it will be running, both will be the same answer, but for scanned PDF it's better to use UiPath this read PDF with OCR activity over there. Okay, so let's quickly jump to Academy. तो यहाँ इस चैप्टर में इतना कुछ है नहीं खास, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट. सो क्विकली से PDF इज द नेटिव PDF यू कैन सेलेक्ट ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट इन द फाइल. ट्रू, मैंने पहले से कर रखा है. ऑब्वियसली मैंने आपको बताया नेटिव PDF में ही हम अपने टेक्स्ट ब्लॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इट इज ट्रू ओवर देयर. लेट्स क्विकली सी हमारा प्रैक्टिस में क्या है. यहाँ पे extract data using the PDF activities over there. ठीक है, let's see. You have received an email containing scanned PDF files containing the latest invoices. Okay, your task is to create a workflow that extracts date and total from these invoices and write them into an Excel file. तो ये automation है, बहुत important automation है यहाँ पे guys, very important as well. ठीक है, रिट्रीव डेट एंड टोटल वैल्यू. अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे इनवॉइसेस की क्या जिप इन्होंने दी. लेट्स सी इसको हम हाफ एन आवर ड्यूरेशन के अंदर पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते. इफ वी कैन, ठीक है, नहीं तो फिर विल बी कंटिन्यूइंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट. लेट्स सी इनवॉइसेस ओवर देयर इज दिस डेट एंड ऑल, एवरीथिंग इज देयर. हमें यहाँ पे इसने बोला है एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेट.
गाइस आप देख सकते हैं दैट दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ स्कैन्ड पीडीएफ। ये स्कैन हो रखी है पीडीएफ, इसमें आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक, इसमें मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। दिस विल बी अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ स्कैन्ड पीडीएफ ओवर देयर। गॉट इट? सो राइट, तो आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पे दो पीडीएफ्स हैं, राइट, एंड वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम देयर। लेट्स क्विकली ट्राई एंड डू दिस इन अ सिंगल गो। लेट्स सी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे पीडीएफ आ गई हैं एंड दीज आर द टू पीडीएफ्स ओवर देयर। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे पीडीएफ विद OCR एक्टिविटी ओवर देयर। फाइल I'll give as downloads, not this. This part will be the file, and यहाँ पे I'll be using UiPath documents. ठीक है, the text will be or I can say str. ठीक है, str input will be there। ये हमारा डेटा आ जाएगा यहाँ पे पूरा। इसको मैं एक बार टाइप करके देख लेता हूँ फटाफट। लेट्स सी, str राइट लाइन था, राइट लाइन ओवर देयर, run it। OCR takes a second to detect and all. So as you said, as you saw that it is extracting the data correctly over there। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक्सट्रैक्ट करना है आपका what we need to do, extracts date and the total from these invoices। टोटल एंड डेट हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है पूरा। अब देखिए डेट यहाँ पे कहाँ पे आ रही है, लेट्स सी। डेट इज दिस, डेट आई थिंक डेट इज ओवर देयर, राइट। डेट इज April 15, 2021। सो April 15, 2021 विल बी, या ये हमारा डेट आ रहा है यहाँ पे इस टाइप का। This is the date over there, right? So guys, as you see that हमने यहाँ पे एक OCR का चेंज किया है because UiPath OCR मुझे सही तरह से फॉर्मेट नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे Tesseract OCR यूज कर रहे हैं, जिस प्रोवाइडेड टू अस बाय गूगल। एंड आप देख सकते हैं आई हैव यूज्ड द राइट लाइन ओवर देयर। तो यहाँ पे जो मुझे डेटा है प्रॉपर एक फॉर्म में मिल रहा है इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, एंड आई कैन सी द डेट इज ऑल्सो ओवर देयर। अब इसको करने का ना बहुत सारे ढंग है। अभी सबसे यहाँ पे जो इजीएस्ट ढंग है वो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, which is being approved by UiPath Academy as well. So there is an activity called text to left or right। ठीक है, तो ये एक टाइप का स्प्लिटर आप मान लीजिए। देखिए आप नॉर्मल स्प्लिट मेथड से भी कर सकते हो उसको। ठीक है, आप नॉर्मल स्प्लिट करोगे, फिर उसका इंडेक्स लोगे, देन उसको गेट करोगे दोबारा से, तो यू कैन डू इट लाइक दैट ऑल्सो। बट यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट टू स्प्लिट, सेपरेटर, एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट बिफोर द सेपरेटर, एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट आफ्टर द सेपरेटर। में तो एक सेपरेटर है, ठीक है, उसके लेफ्ट में क्या है, उसके राइट में क्या है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कोलन है, इसके लेफ्ट में डेट है, डेट से लेकर यहाँ स्टार्टिंग तक पूरा है, इसके राइट में अप्रैल से लेके एंड तक पूरा है। तो ये हमें टाइप का देखना है कहाँ पे हमें क्या उसमें रखना है। ठीक है, लेट्स सी। अब स्टार्टिंग में लिखा हुआ है टेक्स्ट टू स्प्लिट, तो अभी तो हमारे पास एक ही टेक्स्ट है जिसको हमें स्प्लिट करना है, वो है str_input। ठीक है, अब यहाँ में सेपरेट किससे करना है, मुझे क्या चाहिए, देखिए मुझे जो यहाँ है आपका, मुझे क्या चाहिए, आपका डेट चाहिए। यहाँ पे आई नीड डेट, राइट। सो आई नीड डेट, डेट चाहिए मुझे यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या है दिखाए, तो अगर मैं देखिए, अगर मैं डेट के इसे स्कैन पीडीएफ में सेलेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं ये कोलन को यहाँ पे, ये कोलन को एज ए सेपरेटर लेता हूँ, तो डेट से लेके ये पूरा पार्ट मेरे पास पहले आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो,
आउटपुट में। तो डेट से लेके ये कोलन से लेफ्ट में यहाँ तक पूरा पार्ट मेरे पास आ जाएगा पार्ट। लेट्स सी इसको, ये दिस विल बी अ ट्राई एंड एरर ओवर देयर, ठीक है, ट्रायल एंड एरर होगा यहाँ पे। एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट बिफोर द सेपरेटर, तो मैं कह दूंगा str, मैं कह दूंगा टेक्स्ट लेफ्ट और आई कैन से टेक्स्ट बिफोर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा एंड जस्ट टेक्स्ट आफ्टर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई जस्ट डू राइट लाइन अगेन। ये राइट लाइन के बदले मैसेज बॉक्स कर देते हैं, आपको दिखेगा एक बार बार सही तरह से। देखो मैसेज बॉक्स हम लोग कर देते हैं एंड टेक्स्ट, just write over there like text before is text before and text after is text after, ठीक है। run it, let's see, ठीक है। अब देखिए टेक्स्ट बिफोर इज, ये मेरा दिस से लेके यहाँ तक पूरा टेक्स्ट बिफोर आ गया। दिस इज अ टाइप ऑफ सेपरेटर ओवर देयर, ठीक है। डेट एंड देखिए डेट से पहले, ठीक है, एंड द टेक्स्ट आफ्टर इज अप्रैल इतना 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 2021, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर गाइस, ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वन क्विकली चेंज आई हैव डन इज, यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास जो डेट है उसको मुझे सेपरेटर लेना है एंड नाउ इफ आई रन द वर्कफ्लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ मैसेज बॉक्स में टाइप कर रहा हूँ टेक्स्ट बिफोर इज दिस वेब होस्ट से लेके यूनाइटेड किंगडम, ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट आया है ये रहा, दिस वेब होस्ट से लेके यूनाइटेड किंगडम, तब क्योंकि मेरे डेट को यहाँ पे एज अ सेपरेटर लिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज अ डेट विद कॉलम एज अ सेपरेटर, कोलॉन एज अ सेपरेटर, ठीक है। इसके बाद अप्रैल मतलब डेट से पहले और डेट के बाद। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपका टेक्स्ट आफ्टर एंड इफ आई रन माय वर्कफ्लो ओवर देयर, तो मुझे अप्रैल से मिल रहा है, अप्रैल इतना इतना। तो मेरे को आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ बिल्ड टू को हटा दूंगा तो मुझे अप्रैल पार्ट मिल जाएगा पूरा का पूरा, दिस पार्ट आई विल गेट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, ठीक है। एक और लेट्स क्विकली यूज वन मोर टेक्स्ट टू लेफ्ट एंड राइट ओवर देयर। अब जो टेक्स्ट टू स्प्लिट है, अब क्या है, अब जो मुझे टेक्स्ट स्प्लिट करना है वो क्या है, टेक्स्ट आफ्टर वाला होगा कि बिफोर वाला होगा? टेक्स्ट आफ्टर वाला होगा ना, क्योंकि देखिए टेक्स्ट आफ्टर में ही मुझे मेरी डेट मिल रही है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास सेपरेटर होगा, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, आफ्टर में क्या है, अप्रैल इतना इतना से लेके बिल्ड टू। अब जो मेरे सेपरेटर होगा दैट विल बी व्हाट, बिल्ड टू, ठीक है। तो बिल्ड टू कोलन ये हमारा सेपरेटर है यहाँ पे। एंड अब सेपरेटर के पहले अगर मैं कहूँगा, मैं str डेट, ये मेरा डेट वेरिएबल यहाँ पे आ गया है। एंड अब अगर मैं यहाँ पे से लिखूंगा तो it will be giving me only the date part। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे आंसर अप्रैल 15 2021 इज द डेट ओवर। गॉट इट, ये डेट आ गई मेरे पास, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव टू एक्सट्रैक्ट, I have to extract I think now the total चाहिए अपने को, total yeah and the total yes, so the total मेरा यहाँ पे आ रहा है, ये पार्ट है मेरा पूरा टोटल है। अच्छा ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, बिफोर तो ये हो गया बिल टू के पहले, मतलब अब बिल टू के पहले खाली ये पार्ट आ रहा है,
लेकिन बिल्ड टू के बाद तो ये पार्ट पूरा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेक्स्ट राइट। ठीक है, मेरे पास str डेट आ गई, डोंट नीड इट नाउ। टेक्स्ट राइट, लेट्स सी क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि सीधा आउटपुट। ठीक है, देखिए टेक्स्ट राइट में मेरे पास आ गया है ये सम कंपनी एलटीडी ओवर देयर एंड सो ओवर देयर। ठीक है, अब देखिए लास्ट में मेरे पास सिर्फ है यहाँ पे आपका वन मोर बॉक्स आई विल बी नीडिंग ओवर देयर, टेक्स्ट टू लेफ्ट एंड राइट एंड इट विल बी ओवर आफ्टर दैट टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट राइट। ठीक है, टेक्स्ट राइट मैंने क्यों लिया, मैंने अभी आपको दिखाया। टेक्स्ट राइट में पूरा का पूरा मेरे पास टोटल आ रहा है यहाँ, ये पार्ट शीट बिल्ड टू के राइट में ये पूरा डेटा है इंक्लूडिंग द टोटल पार्ट। नाउ कस्टम अगेन एंड यहाँ पे आई से टोटल विंडो। नाउ आई विल बी सेइंग str राइट में मैंने क्यों लिया, बिकॉज गाइस ऑब्वियसली टोटल के राइट में मेरा डेटा है ना, तो आई से str total and now if I'll run my workflow, let's see we have the total। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट किया है ना। इफ वी आर नॉट यूजिंग द स्प्लिट मेथड ओवर देयर, राइट, हाउ इजीली वी हैव एक्सट्रैक्टेड द डेटा ओवर देयर। ठीक है, गॉट इट। तो बस अब हमें क्या करना है, आई थिंक इसको वी नीड टू and write them to an Excel file, okay, using the write range activity। ठीक है, no worries, so we have everything that we need। ठीक है, so guys for that we need to build a data table। actually हमें पहले build करना पड़ेगा data table यहाँ पे, because we don't have a data table over। okay, हम data table यहाँ build करेंगे, तो first part will be string, बट हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं आपका डेट के नाम से। ठीक है, सेकेंड पार्ट विल बी ऑफ टोटल, यहाँ पे इसको स्ट्रिंग कर। ठीक है, गॉट इट। अब यहाँ मेरे पास डेटा टेबल आ गया है, बिल्ड हमने स्कीमा बिल्ड कर लिया है dt अंडरस्कोर। अब डेटा टेबल बिल्ड है बट दिस एम्प्टी, वी नीड टू ऐड अ what we need to add a data row over there। ठीक है, रो हमें ऐड करनी है उसके अंदर। now the row will be what, the row will be of str मैंने बनाए थे, पहले आएगा डेट एंड द नेक्स्ट विल बी str2। ये दो वैल्यू मेरी रो के अंदर जाएंगी एंड द डेटा टेबल जहां पे हमें इसको लिखना है दैट विल बी डेटा टेबल इन। ठीक है, तो रो भी मेरे पास आ गई यहाँ पे। नाउ वी हैव द रोज, वी हैव द डेटा टेबल, नाउ वी नीड टू राइट द डेटा टेबल टू एन एक्सेल फाइल। राइट रेंज फाइल से राइट रेंज, Okay, we don't have Excel activities ना। अच्छा, sorry, we need Excel activity as well। तो मेरे पास इस पे नहीं है बट we need this। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट रेंज वर्कबुक 30। ठीक है, शीट नेम sheet 1 data table dt input, sheet I'll say output dot xlsx, headers हैं बिल्कुल नहीं। ठीक है, now if I'll run my workflow, let's see what happens। उन्होंने लिख दिया है एंड नाउ प्रोजेक्ट में जाऊंगा, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ मैं फटाक से
इफ आई रिफ्रेश माय वर्कफ्लो, यहाँ output.xlsx फाइल आ गई है मेरे पास। लेट्स सी, तो हमारे पास गाइस आप देख सकते हैं डेट और टोटल दोनों का दोनों एज अ रो में लिख के आ गया। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रैक्टिस ऑटोमेशन एज वेल। ये वाला तो हमने आज 2 पार्ट निपटाए हैं एक ही वीडियो में, बिकॉज इट वाज नॉट दैट लेंदी दिस पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट we'll be seeing a single piece of data हम कैसे extract कर सकते हैं from multiple PDF over there। ठीक है, so it's gonna be very interesting and then we'll be doing a practice, then maybe हो सकता है इसको भी हम दो chapters को एक वीडियो में complete कर दें। Got it? So guys, ये एक छोटा सा gist था regarding what is PDF activities, how we can use read PDF with text, how we can use read PDF with OCR over there। ठीक है, कोई डाउट्स हो आपको, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज डोंट फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई योर आंसर्स। ओके, एंड वन मोर थिंग, इस पे हम लोग यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर ईच फाइल इनसाइड अ फोल्डर और ए फॉर ईच लूप, देन वी कैन यूज बोथ। अभी मैंने एक फाइल के लिए करके दिखाया है, बट आई थिंक ये आप लोगों को होमवर्क होना चाहिए, या आप लोग सॉल्यूशन देख के भी कर सकते हो। एंड ये मुझे बताना कि आप लोग स्प्लिट से इसे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मैं तो कर पा रहा हूँ, आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस विल बी द होमवर्क फॉर एवरीवन हु इज सीइंग द वीडियो। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हैप्पी ऑटोमेशन एंड एज ऑलवेज कीप learning।